Hello dear students, welcome to the video session classes for class 12th. I am back with a long time. I think I have taken a break of nearly 1 week, I guess, right? So, hope you must be doing all well, fine. So, with that, let me start the topic, right. So, I have already completed the very first chapter of your physics syllabus for the class 12th. And by the way, I am Manish Mishra and I will be taking physics lecture of class 11th and 12th. In this particular session, I will be taking the class for 12th, right. So, as we have already discussed about few things, now we will discuss about electric potential and capacitance. That is the chapter number 2 of your syllabus, right. So, now let us start with the things. What exactly do you mean by electrostatic potential and what is its application and all everything, okay. So, we will start with that. So, see first we need to understand before going all through that few things. The first topic that I would discuss is the line integral of electric field. Okay. Now, what does it give? It basically gives work done. Okay. And why are we studying this work done? As potential is equal to work per unit charge. So, we need to understand what work would be, right. Now, for that let us consider a graph. Okay. Before doing that, let us consider a graph. Let us say there is a plane and in that plane there are 2 points. Let us consider a point number A and secondly a point number B. So, here we have point A and here we have point B. Now, this is position vector R A and this one position vector R B. Now, we need to travel to A to B. Okay. So, there is a point in between that. We are just considering a point in between that, and at that point we supposed to presume a test positive charge to be placed, and there is a charge plus q at the point that at the origin of the axis, right. So, a force will be experienced by the q naught that will be caused due to the electric field created by the plus q charge at the origin of the coordinate, isn't it? तो यहाँ पे आपका एक force लग रहा होगा. So, let that force be equal to F, ठीक है, and of course that F would be equal to nothing other than plus q naught unit test positive charge into electric field. And what is the cause of this electric field? The cause of electric field is this particular charge. Now, you getting it clear? Okay. Now, let us see. So, how do you define it? First of all, we need to define it. Okay. So, there are axes x axis, y axis, and even if you want to take the z axis, there is no problem in that. So, as per the copybook, we can say that the negative, okay, the negative line integral of what? The electric field represents work done. It represents work done. Okay. So, we are done with that. Now, moving ahead, we can say that let us move on to the second part, right. See so, now we are very much familiar with things like F. As I told you, F, that is force, is equivalent to plus q naught into the electric field.
ठीक है, एंड दिस फोर्स बेसिकली एक्ट्स, ठीक है, ऑन द टेस्ट चार्ज, ऑन द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ, ठीक है. So I think this must be very much clear to you all, and that is caused due to what? Due to the plus charge that is placed at the origin of the coordinate axis, ठीक है. Now, and what is the direction of this force? The direction of this force is radially outward, radially outward. Fine, we are done with that. Now to prevent, ठीक है, as a result of which it will cause the charge to accelerate, ठीक है, what would happen? It would imply that the test charge gets accelerated, ठीक है, gets accelerated. Now to avoid any kind of acceleration thus produced, an opposing force has to be put on that, ठीक है, that is force which is counter in nature, and this counter force would be very much equivalent to minus q naught into E. Why q naught into E? Because the direction is opposite to what we were getting in the earlier case, ठीक है. So this much is very much clear to you all guys, right? आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक. Now next excuse me, the next third part is say work, ठीक है. So work, ठीक है, I just traced a graph, ठीक है, in which I said from A to B the particle has to be moved, ठीक है, and there is a point at which the test positive charge is placed. So in order to that, ठीक है, we can say that work done from A to B can be written as per the definition integral of work done. द पार्शियल, यहाँ से यहाँ तक आने में छोटे छोटे बड़े सारे सेक्शंस लगे होंगे, तो उन सेक्शंस को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वी विल गेट द एंटायर पार्ट ऑफ इट, इजंट इट. तो सारा हम लोगों को मिल जाएगा वो पॉइंट, ठीक है. नाउ व्हाट वी वुड डू इज दैट, ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू माइनस, अपोज कर रहे हैं ना उस फोर्स को, ठीक है, वर्क हमें करना पड़ेगा अपोजिंग नेचर पे, E डॉट डी एल. फाइन, सो वी कैन से दैट, अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीन्स देखो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, ठीक है. सो वर्क इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी एल, ठीक है, एफ इंटू डी एल, एफ इंटू डी एक्स, राइट. तो इसका एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, तो भाई हम इसको लिख लेते हैं कि माइनस क्यू नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एल. यू जस्ट कट दिस आउट, ठीक है. सो ये मिल गया हम लोगों को, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया. और आपने पोजीशन कहाँ से कहाँ बदली, 1 अपॉन मीन्स इंटीग्रल इसका क्या आएगा, ठीक है, मीन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा. सो आप इसका एक स्टेप यहाँ पे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वलेंट टू, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है, k that is 1 by 4 pi epsilon naught of course, k q q2 that is q upon r square. So 1 upon, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 upon r square, ठीक है, का इंटीग्रल. तो 1 upon r square का इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ dr जब मिलेगा तो आपको 1 upon r उसका रिजल्ट आना है. सो हियर इज 1 upon ra माइनस 1 upon rb माइनस 1 upon rb, ठीक है, ra दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है. सो ये गॉट इट हियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को. फाइन, सो अभी हम लोगों को वर्क डन मिल गया, ठीक है. सो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन सम अप इट एज, ठीक है, सी वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंटू डी एल, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए. दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है. फाइन, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर. सो इससे 2-3 बातों का हम लोगों को पता चलता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले क्या है, वो कंजर्वेटिव है. It is conservative in nature,
कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज लाइन इंटीग्रल। तो हम ये भी लिख सकते हैं, गॉस में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था डिफरेंस कि व्हाट इज, ठीक है, लाइन इंटीग्रल एंड व्हाट इज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और कब किसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट हमारा क्या था, ए से बी तक था, तो ये इक्वेशन को हम लोग इजीली सम अप कर सकते हैं। फाइन, आई थिंक दिस मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, राइट। सो नाउ अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं एंड इट इज, ठीक, अब हम लोग इतना तो समझ सकते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो भाई बताओ, आप लोग पहले भी कर चुके हो, 11th में भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, व्हाट इज कंजर्वेटिव, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, क्यों कहा हम लोगों ने, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, व्हाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर फॉर दैट, ठीक है। मेन इसका रीजन ये है, इट, हमने रिलेशन से भी देखा कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, it only depends on initial and final point but not on the path it follows, ठीक है। सो अब हम ये लिख सकते हैं ना कि that is why it is conservative in nature, ठीक है। सो that is the reason behind it being conservative in nature, fine। so I think this must be very much clear to you all, fine। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। नाउ लेट अस बिगिन विद द टॉपिक इटसेल्फ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? एज यू कैन सी इन द slide itself, it's already given that electrostatic potential is defined as work required to be done against the force by electric field in bringing a unit test positive charge from infinite distance to a given point in the electric field, ठीक है, right, and is called electrostatic potential at that point। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, ए से बी तक अगर हम लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले उस जो ओरिजिन पे एक चार्ज था, उस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक, और एक टेस्ट चार्ज को आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाह रहे हो, तो उसकी वजह से हो सकता है वो एक्सेलरेटेड हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा टू डी एक्सेलरेट दैट, ठीक है। तो इस वजह से आपको वर्क अलग से करना पड़ता है। नाउ लेट अस कंज्यूम दैट एक पॉइंट है हमारा P, ठीक है, एक पॉइंट हमारा है P, ठीक है, और एक पॉइंट है हमारा Q, ठीक है, और ये जो है दैट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ये P तक है और इन्फिनिटी से ये Q तक है, ये दो पॉइंट्स हमने मान लिए। सो अभी अगर हम लोग को पोटेंशियल एट P निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एज वी हैव जस्ट स्टडीड दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E dr, लेंथ है ना, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि Vp इज इक्वल टू, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वाई नेगेटिव, रीजन बता दिया आपको। तो वो कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, P तक जा रहा है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट, राइट, तो dr, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सिमिलरली, ठीक है, हम लोग Q के लिए भी निकाल सकते हैं, बट बिफोर दैट सिंस इट इज, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द टू मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होगी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोजीशन है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता तो आप केवल इतना लिखो, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो भाई वर्क क्या है, एनर्जी है, और चार्ज क्या है, कूलम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम इज द यूनिट फॉर व्हाट, पोटेंशियल, राइट, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, SI यूनिट में उसको कहते हैं वोल्ट, फाइन। सो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू ऑल, फाइन। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक स्लाइड, यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट है,
ठीक है, और यहाँ पे Q पॉइंट है, तो इन्फिनिटी से आप P पे लेके आए और फिर इन्फिनिटी से आप Q पे लेके आए, दोनों जगह आप लोग लेके आ रहे हो उसको, और ला कहाँ से रहे हो, इन्फिनिटी, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उस रेडियली आउटवर्ड जाएगा ना, तो ओरिजिन से वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब हमने दो पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। पहली क्या है, Vp, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई Vp इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डी आर, ठीक है, एंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। उसी तरीके से हम लोग VQ भी निकाल सकते हैं चाहे लाइकवाइज। तो चलो भाई इसी से स्टार्ट करते हैं, Q के लिए भी निकालना है चाहे P के लिए, किसी के पॉइंट के लिए निकालना है, तो एक से निकाल लेंगे तो बाकी सारा हम लोगों को आराम से मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, KQ अपॉन R, लेट दैट चार्ज बी Q। यहाँ पे देख रहे हो आप, द चार्ज इज Q, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज KQ अपॉन व्हाट, एक पॉइंट चार्ज है, सो दैट वुड बी इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इट वुड बी इक्वल टू KQ अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब लोगों ने बता दिया इसको। नाउ अगर यही चीज आप पोटेंशियल के टर्म पे लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो आप, तो Vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू P, राइट, एंड 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q डिवाइडेड बाय व्हाट, R स्क्वायर इंटू डी आर। ये सिंपल हम लोग इक्वेशन ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है, अगर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सी Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो बाहर आ गया, और इंटीग्रल करना है आपने किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डी आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन, अब ये नेगेटिव तो है ही शुरू से, ठीक है, अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस 1 अपॉन माइनस आर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो Vp इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन दैट यू गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल क्या होगा, मतलब उस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लाने में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए, दैट इज डिफाइंड एज इट्स पोटेंशियल। सो हाउ डू यू डिफाइन पोटेंशियल, नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट। So potential is defined as a work done to bring a unit test positive charge from infinity to a particular point, ठीक है। I think this is very much clear, right? Now let us move, if you have a system of charge, then what will happen? So in this case, if you have a system of charge, then so we can just presume that, ठीक है, we will take an array of different charges, we will take an array of different charges, and with that we will try to solve out the problem, ठीक है। let us consider, ठीक है, there to be, let's say एक पॉइंट है हमारा P, और इस पॉइंट पे, ठीक है, एक चार्ज हमने ले लिया Q1 और एक चार्ज ले लिया हमने Q2, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, यहाँ पे Q3, इसकी पोजीशन वेक्टर R3। आप भी जितनी मर्जी उतनी ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे Qn ले लो, Rn हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन से दैट, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जनरल हम समेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों भाई, सही बात है ना, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज is basically an algebraic summation, right, algebraic summation of all their individual potential at that point, so we can just say that, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ना, नेट पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, भाई P पॉइंट पे ही तो आपको पोटेंशियल बताना है ना, ये हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी, ठीक है। तो भाई इसके पोटेंशियल 1 के लिए क्या लिखोगे आप, KQ1 अपॉन R1, इसके लिए क्या लिखो, KQ2 अपॉन R2, इसके लिए क्या लिखो, KQ3 अपॉन R3। तो K तो भाई सबके साथ कॉमन है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, हम ये समेशन इनफाइनाइट कर लेते हैं। नाउ दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एंड समेशन ऑफ, ठीक है, व्हाट, Qi डिवाइडेड बाय Ri। तो
तो I की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर के n तक, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर व्हाट, इनफाइनाइट चार्जेस, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्जेस। देखो समझने की कोशिश क्या करो, हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है P, उस पॉइंट P पे हम लोगों को बहुत सारे आसपास आजू बाजू, जैसे मैं मान लो पॉइंट P हूँ, ठीक है, और मेरे आजू बाजू बहुत सारे चार्जेस हैं, तो भाई मेरे वजह से एक फील्ड क्रिएट हुई होगी ना, तो उस पॉइंट पे मान लो मुझे वर्क अगर वहां तक लाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा चार्जेस को, ठीक है, तो कितना होगा, कई सारे चार्जेस को लेके आने, भाई एक को लाने में इतना काम पड़ गया, दूसरे को लाने में इतना काम पड़ गया। चाहे आप ऐसा भी सोच लो ना, अगर मान लो आप दिल्ली से चले हो देवरिया आने के लिए या फिर लखनऊ आने के लिए, तो दिल्ली से आप हो सकता है बरेली पहले आए हो, बरेली से फिर पहले उसके बाद आप आए हो लखनऊ, ठीक है, या फिर दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, तो दिल्ली से कानपुर में जितना वर्क लगा होगा, कानपुर से लखनऊ में जितना वर्क लगा होगा, दोनों को जोड़ दोगे टोटल वर्क आ गया। तो भाई चार्ज तो आप ही हो ना, आपको ही ला रहे हो, तो दोनों जगह पे आपको ही लाया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हो, उनके समेशन कर दिए, तो हम लोगों को टोटल वर्क आपका मिल गया, फाइन। सो दैट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, राइट। नाउ लेट अस सी, सो पोटेंशियल क्या है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी द थर्ड पार्ट। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने पहले भी इसमें आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कहा कि P पॉइंट है। नाउ लेट अस कंसिडर, उसी में एक Q पॉइंट भी था, तो भाई उसका भी पोटेंशियल हमने निकाल लिया। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे है ना, ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल है, तो भाई हम लोगों को हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाना है, ठीक है, Q पॉइंट पे P पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी से Q और इन्फिनिटी से P, ये P है और ये Q, तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, वर्क इन्फिनिटी टू Q माइनस वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ये वाला P है और ये वाला आपका Q है, ठीक है। सो P से Q यानी कि infinite means potential at Q minus potential at P. See this one will give you the work done, ठीक है, that is potential difference. तो EDR, ठीक है, अब ये नेगेटिव है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो हमारा समेशन ये रिजल्ट आ गया। सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको माइनस करना है और Vp का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला क्वांटिटी आपका प्लस हो गया, फाइन, ये वाली क्वांटिटी आपकी प्लस हो गई, क्लियर, दिक्कत, फाइन। सो नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट potential electrostatic potential energy. Now what do you mean by electrostatic potential energy? See, basically electrostatic, see the word electrostatic itself is pertaining to the charge which is at rest, right? So for that the work done, basically we can say that the work done to or the work to be done against the electric field from bringing a charge, तो वर्क आपका करना पड़ रहा है। सो हाउ डू यू डिफाइन एन एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट। सो अगर आप वर्क को ही अगर आप देखो तो उसको भी हम एनर्जी कह सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई हम लिखा हम लोगों ने वर्क इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इंटू एस, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस है ना, एफ इंटू एस। अब ये एफ को क्या लिखे हम यहाँ पे, एफ को लिखा हमने क्यू इंटू ई इंटू डी आर। तो भाई ये डी आर है, तो छोटे पोर्शन को हमने ट्रैवल किया, डी आर है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो पहले टर्म आया होगा वो वर्क डन भी क्या होगा, पार्शियल रहा होगा ना, एक छोटा सा वर्क। तो मान लो इसको इंटीग्रेट किया तो टोटल वर्क मिल गया। अब मैं इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लेके आता हूँ उस फोर्स को, उस वर्क जो मुझे करना पड़ रहा है, तो ये मुझे नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, योर टोटल एनर्जी। एंड व्हाट इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू व्हाट, EDR इज इक्वल टू, EDR कितने के बराबर है बताओ आप, EDR इज इक्वल टू पोटेंशियल, है ना। तो आप ये लिख सकते हो ना, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इजी, फाइन, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, of 2 point charges. But before going to that, ठीक है, let us consider a numerical, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को पहले हम लोग
देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस कंसिडर वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस, Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम, Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम एंड Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम एंड दे आर ऑल फिक्स्ड एज शोन इन द फिगर, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट P, ठीक है। तो भाई P पे बताना है आपको, ठीक है, इस वाले पॉइंट P पे आपको बताना है। तो P पॉइंट पे बताना है तो आप कैसे क्या करोगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, भाई तो P के लिए आप Q1 से उसका निकाल लो, Q2 से आप उसका निकाल लो और Q3 से उसका निकाल लो, फाइन। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये पॉइंट ये रहा हमारा P, इस पे निकालना है। यहाँ पे आपका Q1 है, यहाँ पे आपका Q2 है और यहाँ पे Q3 है। तो भैया Q1 से इसकी पोजीशन कितनी है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर इसका डायगोनल है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते क्या, निकल जाएगी ना, ठीक है, आराम से निकल जाएगी। तो आप यहाँ से के Q1 Q मीन्स के Q अपन R लिखोगे। तो आप क्या, इस पोजीशन को आप किसी एक पोजीशन को R1 ले लो, किसी एक पोजीशन को आप R2 ले लो, किसी एक पोजीशन को आप R3 ले लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो 2 वाला है, 2 से इसकी पोजीशन कितनी है, 5 है, क्योंकि डायगोनल रेक्टेंगल में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब ये 3 है, ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप क्या लिखाओगे, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये 5 है और अगर ये वाला 3 है तो ये कितना होगा बताओ, 3 3 9 4 4 16, तब तो मिलकर 25 होंगे ना। तो ये 4 रहा होगा इस वजह से ये, ठीक है। तो हम पहला काम क्या करते हैं, ठीक है, कि Vp इज इक्वल टू, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, मैंने नेम दे दिया इसको Q1 के हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, K सब में है, सो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 और इन सबको जोड़ देंगे, वेरी इजी। तो पॉइंट P पे हमारे पोटेंशियल क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। अब उसी में देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, बी है कि हाउ मच वर्क वुड बी नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज Q4 is equal to 2.5 माइक्रोकुलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्लेस इट एट P, ठीक है। तो भाई इन्फिनिटी से लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हम एस्पेक्ट है हमारा, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है, दैट इज एनी एक्सटर्नल वर्क, सो वर्क विच वुड बी डन एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू पुल दैट चार्ज, सो V इंटू Q, ठीक है। तो ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो भाई VF माइनस VI कर लेते हैं, तो आप इन्फिनिटी से ला रहे हो ना, तो VI इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो हमारा क्या हो गया टोटल पोटेंशियल, तो इस केस में हमारा हो जाएगा वर्क विल बी इक्वल टू कितने होंगे बताओ, Q4 कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकुलम में, तो कुलम में बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है, इंटू, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, ठीक है, पोटेंशियल चाहिए, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस पहले आपने जो कैलकुलेट किया हुआ उससे कैलकुलेशन देख लो पहले उसकी, ठीक है, VF माइनस VI, फाइन, वो निकल जाएगा, देन वी विल इजीली सॉल्व इट आउट, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू ईयर। आप सबसे ये है कि आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सोल्यूशन जो है इंटेक्स करो एंड आई विल सी दैट, ठीक है। एंड इफ देयर इज हैपनिंग टू बी एनी काइंड ऑफ डाउट देन आई विल ऑल्सो go through that doubt and make a separate session for that, ठीक है। now let's move to another part now suppose अब देखो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, फाइन, सो वी कैन जस्ट मूव अहेड। so till here I have already explained potential and potential of all these charges, that is point 1 charge or point charge or mean system of charges, we have all gone through that part, ठीक है, and hope you would take a note of that and do give me your comments. This is the first lecture that I would be, that basically for the class 12th I am giving on a means through this digital mode, and do give me your comments if you like it or you don't like it, ठीक है। So like, share and thanks for any response that you give, thanks a lot, ठीक है। and by the way I am Manish Mishra, ठीक है, your physics faculty, clear, so thank you, thanks again।